CEO sir himself wanted to take and interact with the management trainees. Sir, these are the newly joined management trainees who have joined us from various subsidiaries. At the present batch, we have around 130 management trainees who have joined us from various subsidiaries, and the majority of them come from mining discipline. Around 96 management trainees of this batch are from mining discipline, followed by system discipline 9 management trainees, EMT discipline 6 management trainees, and we have 2 civil engineers as well. Sir, whenever a management trainee joins, there are 3 different trainings that a management trainee has to undergo. That is induction training program, which is the ongoing one. The second one is technical skill development program, which focuses on the technical development of the management trainee. And the third program is managerial skill development program, which focuses on the managerial aspects of management trainees development. After this 3 training, they have to undergo one probation closer examination here at IIScM, and then after that, the probation is closed and they are placed as assistant managers. Currently, this batch has started from 26th of October and shall be ending on 11th of November. They have undergone training on various important topics from different subjects. And today we are here to talk on vigilance, which is one very important topic. Dear management trainees, Shri Brijesh Kumar Tripathi sir has assumed the charge of Chief Vigilance Officer, CVO Coal India Limited, Kolkata on 16th November 2022. He did his Bachelor's of Engineering in Civil from MNREC Allahabad and Masters of Technology from Indian Institute of Technology, Delhi. Before joining Coal India Limited, he served in the administrative post of Additional Divisional Railway Manager of Asansol Division of Eastern Railway. Earlier, he was instrumental in many vigilance reforms and system improvements while working as Chief Vigilance Officer in Eastern Railway. Shri Tripathi has vast experience of about 25 years in planning, design and execution of various railway projects as well as maintenance and operation of major infrastructure. He has expertise in matters related to establishment, budget, tender and contract management, etc. With his rich experience, sir is here to interact with all of you. I now request respected Brijesh Kumar Tripathi sir to kindly address the gathering, whether he feels comfortable to address it from there or from the podium, as comfortable to you, sir. साथ में ये भी हम लोग प्रोग्राम किए कि क्यों नहीं वहाँ जो हमारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उनके साथ कुछ देर बैठा जाए, बात की जाए और जाना जाए कि हमारे जो यंग माइंड्स है, हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, वो कोल इंडिया बारे में क्या क्या सीखे, क्या क्या जाने, कैसा अपना विचार करें। तो मैं आप लोगों से केवल 5 आदमी से तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या पॉजिटिव पॉइंट है हमारे कोल इंडिया का। आप लोग अराउंड 5-6 मंथ जॉब कर चुके हैं, कोई 5 आदमी को बताइए 5 पॉजिटिव पॉइंट अलग अलग आदमी कोल इंडिया के क्या पॉजिटिव है। Compared to other PSUs, अच्छा खास सैलरी देती है। अच्छा खासा सैलरी। ओके, और कोई coal industry experts are more in Coal India Limited other than any other company or PSUs in India, even in the world. Good. Next. So, since we are an energy producer, we have very essential service in our country. This is also good. The biggest proud moment for me while I joined Coal India is that it is the largest coal producer in the world. And it is also contributing a lot to the GDP, which is the ultimate goal to the country. Okay. ये 5 हेलो I noticed, I worked before with private organization. I noticed one positive thing with the Coal India Limited is the paperwork. Regulation paperwork is very great in the Coal India. We are following the great paperwork from starting to end. And also, we are changing to the new technologies in ERP and digitization very fast. Yes. ये 5
जो हम लोग पॉजिटिव पॉइंट लिए पांचों बिल्कुल अलग अलग है और वास्तव में पांचों यूनिक है, यही सब सुन करके हमको गर्व होता है। पिछले साल हमको लक्ष्य दिया गया था 700 मिलियन मेट्रिक टन का। जब लक्ष्य दिया गया तब इतना विशाल काय लग रहा था कि ये लक्ष्य पाना मुश्किल है, क्या बात करते हैं आप लोग। लेकिन हमारा हर कोल इंडिया, चाहे वो माइंड के कोने कोने में बैठा हुआ हो, चाहे ऑफिस में हो, हर आदमी लगा रहा और आपको आश्चर्य होगा 700 मिलियन टन को टच नहीं किया, उनकी पार कर गया। इस साल हम लोग को 780 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट है और लास्ट 4 मंथ में डबल डिजिट का प्रोग्रेस हमारा इंक्रीमेंट कंटिन्यूअस आया है, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। यानी जिस तरह से कोल इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, सैलरी की बात करें, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग की बात कर रहे हैं, जब कोई कमिटमेंट करता है कि मैं आपके घर में बिजली पहुंचाऊंगा, लाइट पहुंचाऊंगा, तो साथ में वहां भी देखता है कौन है जो हमको सपोर्ट कर सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी कौन दे सकता है। मीन्स आप लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो वास्तव में बहुत ही गौरव वाली प्राइवेट कंपनी है और अच्छी कंपनी है, इसको और अच्छी बना सकते हैं। चेयरमैन साहब 1 महीना पहले जब हम लोग कुछ बिजनेस की बातें कर रहे थे, उनका वीडियो भी आप देखे होंगे, वेबसाइट पर अवेलेबल है हमारे चेयरमैन साहब का। उसमें चेयरमैन साहब ने बोला है कि कोल इंडिया को अव्वल दर्जे का कंपनी बनाना है, अव्वल दर्जे का नंबर 1 बनाना है। ये कहाँ से शुरू होगा? जब हम अपना मेंटेलिटी को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, पॉजिटिव में काम करेंगे और काम करेंगे। जब 700 पार किए तो हमको डिसीजन लेना पड़ा। जब हम 780 जब पार करने का सोचेंगे तो हमको और बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जब बोल्ड डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि हमारा कुछ डिसीजन गलत हो जाए, हो सकता है कि हमारा कुछ डिसीजन गलत हो जाए। जब हमारे पास ऑप्शन होता है 1, 2, 3 में, तभी हमको बोला जाता है कि तुम डिसाइड करो। जब हमको डिसाइड करना है 1, 2, 3, 4 में और हम 1 डिसाइड किए, चाहे 5, 4 डिसाइड किए, वो बाद में पता चला गलत हो गया। तब आता है कि बिजनेस वाले को गलत है, बिजनेस का कहानी वैसे आता है कि रेगुलर डिसीजन ले लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम डिसीजन ही न लें। आप बताएं कि सैलरी ज़्यादा देता है, इस सैलरी ज़्यादा देता है तो हमारा अपनापन भी ज़्यादा होना चाहिए, हमको काम भी ज़्यादा करना है और हमको डिसीजन लेने के लिए भेजा गया, उसी के लिए हमको सैलरी दिया जाएगा। बैठ करके टाइम पास करने के लिए नहीं दिया गया है। हम तभी प्रोडक्शन कर पाएंगे, वो नंबर 1 तभी हम बन पाएंगे जब सब लोग मेहनत करेगा। जब हम डिसीजन लेंगे, हो सकता है कि आज नहीं कल, चाहे 2 साल बाद वो डिसीजन गलत हो जाए। तो मैं ये बोलने आया हूँ कि ऐसे केस में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप डिसीजन लेंगे, सोच समझ के लेंगे, कंपनी के लिए लेंगे, देश के हित के लिए डिसीजन ले रहे हैं, गलत हो गया वो, तो वो गलत को वो गलत माना जाता है कि ठीक है मिस्टेक हुआ है, दैट इज नॉट ब्रिलियंट थिंकिंग, दैट इज नॉट मॉडिफाइड। यदि आप कंपनी खरीद कर लाओ, अपने लिए कुछ डिसीजन ले रहे हैं, अपना कुछ स्वार्थ के लिए या अपना कुछ और उल्लू सीधा करने के लिए ले रहे हैं, वो फाइल बता देता है, दैट इज ब्रिलियंट। वहां किसी को छोड़ता नहीं है। किसने लिखा था, बख्श देता है खुदा उनको, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है। खुदा भी बख्श देता है उस आदमी को, उस इंसान को जिसकी तकदीर खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते, जिनकी नीयत खराब होती है। भी जानते हैं कि कौन कैसा है, कौन क्या है। तो आपको काम करना है, काम नहीं कीजिएगा तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। काम करना है, बेफिक्र काम करना है। आप जब आग पे चलेंगे तो आग जल पर आपका पैर नहीं जलेगा। तो आपके साथ लोग हैं जो आप बचाने के लिए बैठे हैं। There is a department called Research Department. There is a administration. Your boss is here.
जो आपको बचाने के लिए बैठे हुए हैं। तो काम करने के प्रति जब चूंकि आप बिल्कुल यहाँ से अभी एंट्री कर रहे हैं, काम करने में कभी भी डरना नहीं। यदि कंपनी के हित में काम है तो आप काम करने में डरिए मत। दूसरा, कभी कभी हम लोगों को लगता है कि ये रूल में गलती है या ये आदमी बदमाशी कर रहा है। तो जहां हमको गलत दिख रहा है, जहां हमारा कंपनी का कुछ खराब दिख रहा है, चाहे कहीं रूल में लूप होल दिख रहा है, चाहे कोई उसको मिसयूज कर रहा है, उसको हम तुरंत बताएंगे। कहीं कुछ अनसेफ दिख रहा है, उसको तुरंत हाईलाइट करेंगे। उसी तरह से कहीं कोई करप्शन का इश्यू दिख रहा है, उसको तुरंत हाईलाइट करेंगे। हमारा कंपनी है, हमारा कंपनी में कोई नुकसान कर रहा है, कुछ अनसेफ काम कर रहा है, सबको मारेगा, अपने तो मरेगा ही, सबको मारेगा, प्लस प्रोडक्शन भी रुकेगा। तो हम कभी इस तरह से नहीं करेंगे कि हम देखें और चुप रह जाएं। उसको ठीक करेंगे, हम नहीं ठीक कर सकते कब उसको रिपोर्ट करेंगे। मतलब हमको कल अफसोस ना हो कि हम चाहते तो बचा सकते थे। उस रूल को हम यदि जाते हैं, रूल को जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। उसको प्रिवेंट करना है, इसके पहले है कि कुछ अनहोनी हो जाए हम उसको प्रिवेंट करेंगे। जब हल्ला हंगामा करेंगे तो प्रिवेंट कर सकते हैं। उसी के लिए अभी हम लोग खूब जोर शोर से प्रचार करें पीडीपी कंप्लेंट का। यदि कोई ऐसा आदमी है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो पीडीपी रेजोल्यूशन के तहत आप यदि कंप्लेन करते हैं तो उस में आपका आइडेंटिटी को कंटेंशन रखते हैं। वो कंप्लेन सीधे सीबीसी को भेजा जाता है, वो ना हमारे पास आएगा और ना आप बाकी आपकी सब्सिडी किसी भी पास जाएगा। वो सीधे सीबीसी के सेक्रेटरी सीबीसी को भेजा जाता है। सीबीसी में देयर इज सेक्रेट सेल, वहां पर वो लेटर को खोलते हैं। उसके इन्वॉल्व के ऊपर अपना नाम एड्रेस नहीं लिखना है कि भगवान श्री राम को जब मुसीबत होता था तो उन्हीं को याद करते थे, जब मुसीबत में पड़ते थे हनुमान जी याद आते थे। लक्ष्मण को जब बाण लगा, संजीवनी लेकर आना है, हनुमान जी भी आते थे। हनुमान जी जब संजीवनी लेने जा रहे थे उस समय उनको वैद्य जी ने बताया था कि सूर्योदय होने के पहले संजीवनी आ जाना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मण जी को हम नहीं बचा पाएंगे। जब हनुमान जी लंका से जा रहे थे हिमालय में तो सूरज तो ऊपर रहते हैं, उनको सूरज दिखे। भगवान हनुमान के बारे में आपको पता होगा कि बचपन में वो सूरज को समझे कि लाल फल है और मुंह में निकल गए थे। बहुत ताकतवर थे लेकिन विनम्र भी बहुत थे। तो जब हनुमान जी लेने आते सूरज मिल गए रास्ते में। मैनेजमेंट इस तरह के उनको भी धमकी दिए। आप अपने देखिएगा जब माइंड में जब साइड में काम करेंगे तो हर तरह के लोग आपको हंसाएंगे। तो उसमें एक कविता था, भगवान हनुमान जी सूरज को क्या बोलते हैं जब उनको मिलते हैं रास्ते में, तो हे सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पे है। भगवान श्री राम भी तो सूरजवंशी थे। हे सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। लक्ष्मण को बाण लगा हुआ है। इसलिए छिपे रहना भगवान जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर जब संकट निशा मिटा दूं मैं। फिर उसके बाद आगाह भी करते हैं भगवान सूरज, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चय ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्थ अवस्था होकर करुणार्थ निहारोगे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, फिर धमकी भी दे रहे हैं। अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। तुमको मुख में तुमको धर रखने का फिर वही पूर्ण साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुर्मोचन होगा। मतलब आपके काम में मैनेजमेंट में आपको कभी कभी किसी को धमकी भी देना पड़ सकता है।
इस तरह का सिचुएशन आता है, ये मैनेजमेंट के गुण है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन आप करने जा रहे हैं, तभी मैं बताया, उसमें काम नहीं करेंगे तो फिर कुछ एक्शन होगा नहीं। जब भगवान हनुमान जी जब जाते हैं वहां पर संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारा बूटी जो है वो प्रकाश दे रहा है। फिर अपने वहां दिमाग लगाए, पूरा पहाड़ को उठा के ले गए। अब पढ़िएगा बहुत कुछ वहां से मिलेगा, मैनेजमेंट को किस तरह से काम को संभालेगा। मतलब हमारा ये जो बैच है, हर आदमी अपने जीएम के लिए, अपने माइंड के लिए हनुमान बने, इस तरह से बनना पड़ेगा, इतना विश्वास पात्र बने, खाली ईमानदारी से नहीं, कर्म के बांधे हुए। तो आपको वहां जाकर के जब डिलीवर करेंगे तब आपको संतुष्टि मिलेगा। आपको अव्वल दर्जे का कंपनी बनाना है। आज IICM का फाउंडेशन डे है, 30 साल का हो गया हमारा IICM। लास्ट वीक में हम लोग कोल इंडिया का फाउंडेशन डे मना के आए थे, दैट वाज 49th, मीन्स कोल इंडिया 48 ईयर्स का हो गया। इसमें मैं अपने वहां के सबको बुलाया कि जब 2 साल बाद जब कोल इंडिया 50 साल का होगा, नवंबर 1 2025 में जब कोल इंडिया 50 साल का होगा, और हमारे चेयरमैन साहब का भी मंशा क्लियर है कि हमको अव्वल दर्जे का कंपनी बनाना है, तो ये 2 साल का टाइम हमारे पास है। मैडम 2 साल टाइम बहुत होता है। ये हमारे जो यंग माइंड है, ये हर कोने कोने में जाएंगे और वहां बता के आएंगे कि 2 साल, ये 2 साल हमारा अमृत काल है। कोल इंडिया की अमृत काल यही 2 साल है, इसमें हम लोग मेहनत से काम करें। 2 साल तक हमारा टारगेट भी देखिएगा 1000 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा। अच्छा से काम करें, आंख खोल के काम करें, ऑनेस्टली काम करें, मेहनत से काम करें, तो हम लोग अव्वल दर्जे का बनेंगे। देखिएगा, बस ये 2 साल का होना चाहिए। हर तरह का ईमानदारी, एक दूसरे का कोऑपरेशन, ऑनेस्टी, और ये जो हनुमान जी का बुद्धि वो भी लगाना पड़ेगा, चाहे करप्शन के लगाना पड़े, चाहे प्रोटेक्शन के लगाना पड़े, चाहे अपने सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए लगाना पड़े, और आपको जाना पड़ेगा। आप 15 अगस्त का भाषण सुने मोदी जी का, ऑनरेबल PM का। उन्होंने क्लियर कट बोला कि हमारे देश को करप्शन जड़ में फंसा हुआ है। गवर्नमेंट का मंशा क्लियर है कि करप्शन को हमको हटाना है। आपका मैनेजमेंट का मंशा क्लियर है, करप्शन को हटाना है। आप उनको भूल जाइए जो इक्का दुक्का पड़े हुए ना, वो उनको, उनके लिए PDP वाला इंजेक्शन देना जरूरी है। उसके लिए आपके पास पूरा विजिलेंस डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। वो इक्का दुक्का को लपेटने के लिए आपके पास टूल भी है PDP वाला, और आपके पास स्ट्रेंथ भी है। यदि आपको कुछ नहीं आता, आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो आपका IICM आपका टूल है, आपका एसेट है। उसी तरह से विजिलेंस डिपार्टमेंट आपका एसेट है। ऐसे जो उछल रहे कूद रहे हैं, उनको कंप्लेन करने में कुछ संकोच नहीं होना चाहिए। हम लोग विजिलेंस वाले देखिएगा 99% उनका काम होता है सिस्टम इम्प्रूवमेंट इशू करना। सिस्टम इम्प्रूवमेंट क्या है? आज हम लोग बात कर रहे थे, आपका घर में गेहूं का बोरा रखा हुआ है, बोरे में कोई वीक पॉइंट था, वहां चूहा ने उसको काट दिया या बोरे अपने आप कट गया। मीन्स हमारा रूल है, उसमें कुछ लूप होल है। उस लूप होल को यूज करके कोई आदमी करप्शन कर रहा है। विजिलेंस वाले जब गए, यानी उस गेहूं के बोरे को चूहा काटा या चूहा वहां गिर रहा है, तो उसमें से चूहा गेहूं लेकर गया, खा रहा है चूहा। विजिलेंस वाले गए, देखे कि चूहा खा रहा है, करप्शन करा, उसको पकड़े, और चूहा के पीछे पड़े हुए हैं कि इसको मारना है, मारना है, मारना है। मैं इसको थोड़ा और आगे सोचा कि आप चूहा के पीछे मत पड़िए, आप उसके पीछे पड़िए, यदि पहुंचता भी है तो उसको समझ में नहीं आता है। मैडम, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे सिस्टम इम्प्रूवमेंट का हमेशा क्लास लें। हर सेशन में जो सिस्टम इम्प्रूवमेंट जितना हम इसको किए 10, 20, 50, उसका 2 घंटे 1 घंटे का सिस्टम इम्प्रूवमेंट का भी ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि कुछ लोगों को जब हम बताएंगे तो वो अपने माइंड में जाकर उनको समझा पाएंगे।
दैट इज कॉल्ड सिस्टम इम्प्रूवमेंट। और जो भी सिस्टम इम्प्रूवमेंट आया और उसको प्रचार प्रसार करना है, यदि फिर उसको कोई मिसयूज कर रहा है तो उसको रिपोर्ट करने में कोई कंजूसी नहीं करना है। विजिलेंस का देखिए सबसे बड़ा डर होता है, करप्शन का होता है कोई भी चीज डिले करने का। लोग टेंडर फाइनल करने में डिले करेगा, काम करने में डिले करेगा, बिल पेमेंट करने में डिले करेगा, डीपीसी बनाने में, प्रमोशन में, हर तरह का डिले। डिले मीन्स करप्शन। डिले को यदि हम लोग कंट्रोल करें तो हमारा सिस्टम से करप्शन वाला हट जाएगा और बड़े शान से हम बोल सकते हैं डिले सिस्टम इज नो डिले सिस्टम इन कोल इंडिया लिमिटेड। वो हम भी हमने ड्राइव किया, जब हमारा कोल इंडिया 50 साल का हो जाएगा तो हम ब्रांड पे चले, रूल भूल जाए, वैल्यू पे जाए। मीन्स कोल इंडिया को हम रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी बनाए, दैट इज ब्रांड बेस्ड कंपनी बनाए। तब हम यदि आपसे पूछेंगे कोई एक पॉजिटिव चीज बताइए तो बोलिए सर ब्रांड जो है, जो ब्रांडेड होता है उसका एक ही पॉजिटिव नहीं होता, हजारों पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता ही नहीं है। तो बड़े शान से बोल सकते हैं हम कि हाँ डिले सिस्टम एंड करप्शन सिस्टम इज नो वेयर इन कोल इंडिया लिमिटेड। ये 2 साल का मेहनत करके हमने एक मिशन स्टार्ट किया है, मिशन ब्रांड CIL एट द रेट ऑफ 50। मिशन ब्रांड CIL एट द रेट ऑफ 50। जब 50 साल से हमारा कोल इंडिया हो जाएगा तो ब्रांड वैल्यू पर ही चलेंगे और बड़े शान से बोल सकते हैं कि वी आर स्ट्रॉन्ग। IICM देखिएगा, एक और मैं आज बात कर रहा था कि बाहर में परसेप्शन ये है कि अभी भी हम लोग माथे पर कोयला लेके ढोते हैं, हाथ से कोयला खोदते हैं। दुनिया वालों को ये नहीं पता है कि कोल इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। एवरीथिंग इज मैकेनाइज्ड। नाउ वी आर प्लानिंग एवरीथिंग टू बी ऑटोमेटिक, एवरीथिंग डिजिटाइज। अब हम लोग डिजिटल युग में जा रहे हैं। हमारे पास ERP जैसे उन्होंने बताया, ERP है हमारा, E-ऑफिस है, ई-बिल, ई-मेजरमेंट भी हम शुरू कर दिया है। जब हम सिस्टम में किसी परिवर्तन में जाते हैं तब हमारा IICM का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेनिंग अबाउट द मशीन, ट्रेनिंग अबाउट द डिजिटाइजेशन, इंटरनेट, E-ऑफिस, ERP। ये आप IICM देखने में खाली छोटा है, ये नन्हा दिया है। मैं तो मैडम से बोलूंगा IICM की तरह से, मैं नन्हा सा दिया हूं। तुम अंधेरों को दो चुनौती मेरे एतबार पर, मेरे एतबार मैकेनाइज कीजिए, डिजिटाइज कीजिए, जहां पे जाना है, जो आपका अंधेरा है उसको हटाते रहिए, मैं आपके साथ। मतलब आप IICM का जो ताकत है उसको पहचानिए। मैं बिजनेस में आया, यहाँ पर बिजनेस वाले भी है और भी कोई बिजनेस ऑफिसर है इसमें? जी गौतम है। हमेशा लोग दिमाग में बैठा के रखते हैं कि बिजनेस मीन्स ये तो यार वो मेरा दुश्मन है। विजिलेंस एक डिपार्टमेंट है, सेफ्टी वाला मेरा दुश्मन है। मैं रेलवे ऑफिसर हूँ। जिस दिन मैं रेलवे ज्वाइन किया पहले दिन बताया गया कि यू आर सेफ्टी ऑफिसर, यू आर विजिलेंस ऑफिसर, मीन्स यू आर पर्सनल ऑफिसर। ना आप सारा कुछ आप ही हैं, आप खाली अपने आप को इंजीनियर मत समझिए। वैसे ही हमारा हर कोई इंडियन एक विजिलेंस ऑफिसर है। मैं अभी विजिलेंस अवेयरनेस वीक में एक मोमेंटो डिस्ट्रीब्यूट किया मोबाइल स्टैंड, उसमें लिखा हुआ है आई एम ए प्राउड विजिलेंट कोल इंडियन, आई एम ए प्राउड विजिलेंट कोल इंडियन। हमारा हर कोल इंडियन एक विजिलेंस ऑफिसर है, इस तरह से काम करना है। हमारा हर कोल इंडियन एक सेफ्टी ऑफिसर है, इस तरह से काम करना है। तो उसमें एक कविता में बनाया था, मेरा नाम ब्रजेश है और यदि मैं विजिलेंस में हूं तो मेरी दुश्मनी केवल जो करप्ट उनसे है, वो जो 1-2% वाले हैं, बाकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं दीपक हूं और मेरी दुश्मनी तो केवल अंधेरों से है, लेकिन बुझाने कौन आता है? हवा। हवा दीपक बुझाता है। मतलब जो ऑनेस्ट है, जो काम कर रहे हैं, वो भी डरे हुए हैं, वो दुश्मन मानते हैं। मैं शुरुआत में बताया, काम कीजिए, डरने की बात नहीं है।
उनको डरने की जरूरत है जिसका नीयत खराब है। तो उसमें था कि मैं ब्रजेश हूं, मैं दीपक हूं। आप अपना नाम उनके बोलिए कि आप एक्स हैं, आप दीपक हैं। मेरी दुश्मनी केवल अंधेरों से है। मैं ब्रजेश हूं, मैं दीपक हूं। मेरी दुश्मनी केवल अंधेरों से है। हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए। हवाओं से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है, एक जला के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है। अच्छा नहीं कर सकते, और इधर में आपको दीपक बुझाने वाले। आप हवा है, आप दुश्मन मान रहे हैं, आप खुद जलिए, खुद दिया बन के दिखे, एक जलाइए। मैं ये बोलने आपको आया। मीन्स हमारा जब इतना दिया हर कोने में जलेगा, वो चाहे नन्हा दिया हो चाहे दीपक हो, वो दिया से फिर दिया जलेगा। और वो दिन दूर नहीं कि हम लोग ऑनरेबल सीवीसी आए थे कोल इंडिया में। ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीवीसी दिल्ली से बाहर बिजनेस अवेयरनेस वीक पीरियड में गया हो। वो हम लोग के लिए प्राइड मोमेंट था कि कोल इंडिया कॉर्पोरेट ऑफिस में हम लोग बिजनेस अवेयरनेस वीक में ऑनरेबल सीवीसी को बुलाए। वो हमारे यहाँ आए, उन्होंने ही बताया लेट सिस्टम रन, लेट पीपुल डू द वर्क, और आप वॉच करते रहिए, वॉच करते रहिए। बिजनेस डिपार्टमेंट का खाली वॉच करते रहिए, आप चलने दीजिए। हमारा ड्राइवर गाड़ी में वहां से आने से मना कर देगा कि नहीं सर वो तो बहुत जाम है, ट्रैफिक जाम है, चाहे एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी नहीं चलाएंगे। या ऑटो टैक्सी सब मिक्स ट्रैफिक चलता है। मतलब हम काम करने के लिए बैठे हैं, आपको ड्राइविंग दिया हुआ है, काम चलिए, आप चलिए। यदि कोई उसमें रूल ड्राइविंग कर रहा है उसको हम कंप्लेन करेंगे। हमारा काम है पहुंचना, एयरपोर्ट से IICM हम पहुंचे, मेरा ही काम है। मेरा पर्पस है मेन कि हमारा कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो। विजिलेंस डिपार्टमेंट का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि 780 पार हो, हमारा नेम फेम बढ़े। उसमें साथ में हमने एक और जोड़ दिया है कि ब्रांडेड कंपनी बने। हम 2 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं, 1000 वाला मेट्रिक टन का टारगेट लेके चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इज दिस, सबकी ऑब्जेक्टिव एक है, ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए। उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल होने में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, कुछ भ्रष्ट लोग होते हैं, उनको टेकअप करते जाना है। सिस्टम इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सिस्टम इम्प्रूवमेंट करते जाना है। एलिमिनेट देम, इम्प्रूव द सिस्टम। कोई सिस्टम कितना हो, हम कोल इंडिया का मैनुअल रिवाइज किए 4 महीना पहले, 1,04,000 ऑपरेशन की इशू करना पड़ा। इम्प्रूवमेंट हमेशा ऑलवेज देयर इज चांस, इम्प्रूवमेंट करते जाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। काम रोकना ऑब्जेक्टिव नहीं है, रूल दिखा करके उसको काम रोक देना, काम न करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव इज हमको डिलीवर करना है, काम करना है। उसमें यदि किसी को चार्जशीट होना है, दैट इज एक्टिविटी, दिस इज सिंपली एक्शन, दैट इज नॉट गोल, दैट इज नॉट टारगेट। वो ये सोचे कि हमको चार्जशीट हो गया, बिजनेस वाला चार्जशीट दे दिया, हमारा टारगेट चार्जशीट नहीं था। हमारा टारगेट ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा सिस्टम, हमारा माहौल जो है वो नीट एंड क्लीन रहे। जब हमारा सिस्टम में आप गंदगी फैलाएंगे तो हमारा काम उसको गंदगी को रिमूव कर देना। एक मैडम चाणक्य थे, उन्होंने अपने किताब में लिखा हुआ है कि एक कंटेनर पानी का एक तालाब है, चाहे पानी का बॉक्स है, उसमें मछली है। विजिलेंस वालों को बोला गया है कि आप मछली को वॉच करते रहो कि कहीं पानी तो नहीं पी रही है। मछली उसमें है, तालाब में घूम रही है, विजिलेंस डिपार्टमेंट को बोला गया कि तुम वॉच करो कि कहीं पानी तो नहीं पी रही है। ये काम है विजिलेंस डिपार्टमेंट का। इतना फंड है, इतना माइनिंग है, हर कोने कोने में पता नहीं कौन कहाँ से लेकर के क्या गलत हो सकता है, कहीं हो सकता है, जाने अनजाने भी हो सकता है। वो सबको वॉच करना ड्यूटी है विजिलेंस डिपार्टमेंट का। ये कितना डिफिकल्ट काम है, आप सोच सकते हैं। उसमें मैंने कुछ ऐड किया
कि मैं खुद अपने आप को मछली बन जाता हूँ। तालाब में जाना भी है, हमको तालाब का राउंड भी मारना है, काम भी करना है, और मैं चाहता हूँ कि पानी न पीऊँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए गलती से जाने अनजाने में हमको पानी पीना पड़ सकता है। जब हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं रूल वायलेट हो सकता है, चेक करना पड़ सकता है, या हो जाता होगा गलती से, सही से, वो हमारे बस में भी नहीं है। जैसा हम हर पानी पीने वाले को पकड़ नहीं सकते, उसे न पीना भी नामुमकिन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर मछली को उठा के फेंक दें। हाँ, लेकिन ऐसे मछली को जो खाली पानी पीती है, ऐसे मछली को जो हमारे पानी को पोल्यूट करती है, उसको निकालिए। यदि आप ऐसे जो भी 2-4% वाले हैं, इसमें से निकालते जाइए, तो पानी भी पोल्यूट नहीं हो पाएगा, और ऐसे वहाँ पर गंदगी भी नहीं होगा। दैट शुड बी द रूल ऑफ द लाइफ। अभी सीबीसी में बात कर रहा था। सीबीसी जब आए तो कोल इंडिया से जो बाहर है, उसको कोल इंडिया के बारे में बहुत सी चीज़ नहीं पता। उनको वही कोयला दिखता है। मैडम बोली थी कि आज पॉल्यूशन फैलाना काम है लोगों का, तो कोई स्टेटमेंट किया है कि पॉल्यूशन हम तो खाली प्रोडक्शन करते हैं, जो जलाता है वो फैलाता है पॉल्यूशन। वी आर नॉट वो सही बात है। हर चीज़ में आप मैं जब यहाँ आया, कहाँ जा रहे हो, काला कोयला कोयला काला। जब मैं आया तो 10 दिन के अंदर हमको समझ आ गया कि नहीं, जो बाहर इमेज है वैसा है। बाहर में जो इमेज जो फैला के रखे हैं ऐसा नहीं है। भाई कोल इंडिया इज बेटर, फार बेटर देन सो मेनी कंपनी। हम लोग बहुत अच्छे हैं। और जब इसमें मिक्स करेंगे, हर साल जो हम 100, 200, 300 न्यू यंग जनरेशन वाले यंग ब्रेन को मिक्स करेंगे, वो जो नया सिस्टम को लेकर घुसेंगे, उसमें नया टेक्नोलॉजी, नया ड्राइव, नया इंटू, नया मोमेंटम लेके जाएंगे। कई सारे कंपनी को छोड़ के आप लोग आए हुए हैं, वहाँ से जब कंपेयर करके आप यहाँ जाएंगे, तब देखिएगा उसका मजा ही कुछ और है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सीबीसी जब आए यहाँ पर, तो उन्होंने बताया करीब मेरे को तो लग रहा था कोई 600 आदमी ऐसे करके, अभी तो उनके दिमाग में कहीं कोयला ऐसे बनाया जाता है। तो मैंने बताया कि सर नॉट ए सिंगल केजी कोल मतलब सर पे नहीं चला जा रहा है, हर चीज़ में कराई हो गया है। और आपको आश्चर्य होगा, जिस तरह से हम लोग डिजिटाइज हो रहे हैं, अगले कुछ साल में हम लोग हर चीज़ ऑटोमेटिक कर देंगे। एक्सप्रेशन से लेकर के लोडिंग टू द ट्रेन, ये सारा जब ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब ह्यूमन इंटरफेस नहीं रहेगा, तो फिर अब हमारा ये यहाँ का जितना दीपक है हर माइन में जाएगा। वहाँ देखिए CCTV लगा हुआ है, GPS लगा हुआ है, और हर व्हील इसको कनेक्ट किया हुआ है IRFT से। उसमें चालाक लोग होते हैं, अपना ट्रक को इधर से उधर लेके जाते हैं। उसको हर हमारा जो विजन से फिर वहाँ जाएगा, उसको वॉच करेगा, उसको देखेगा, हंगामा करेगा, कम से कम टोकेगा। यदि कोई गलत करना टोकिएगा तभी शर्म आती है। आप छोड़ दीजिएगा तो सोचेगा कि तो राम राज्य है। जब धनबाद में सुबह सुबह लोग, चाहे गांव वाले हो चाहे जो भी हो, जब वो साइकिल पर अपना लेके जाते हैं कोयला, तो जब सीरीज में जाते हैं तो सभी सोचता है कि देखो क्या राम राज्य चल रहा है कोल इंडिया में। बट दैट इज नॉट द कोल इंडिया। कोल इंडिया वो आप खाली कहने के लिए, कोल इंडिया वाला समथिंग डिफरेंट। और उसी को कर सब टोकना शुरू कर दें, वो भी लोग छुप के भागेगा, एक एक करके भागेगा। तो आप टोक सकते हैं। यदि आप टोकिएगा सही को, उसमें बहुत पहले 2-3 साल पहले मैं कविता लिखा था, वक्त के इस दौर में, उम्र के इस पड़ाव पर, जब हम यहाँ आ गए, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, सबसे खुश है, वी आर इन बेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। वक्त के इस दौर में, उम्र के इस पड़ाव पर वसूलों को ताक पर क्यों रखें हम? गलत को गलत ना सही, पर सही भी क्यों कहें हम? माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है।
माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर माता पिता और गुरुजनों से जो सीखा उसी मूल्यों पर तो टिके हुए हैं। माता पिता और गुरुजनों से जो सीखा उन्हीं मूल्यों पर तो आज तक टिके हुए हैं। ईमानदारी है मेरी जीवन शैली, क्यों भूले हम? ईमानदारी है मेरी जीवन शैली, क्यों भूले हम? ये हमारे पूर्वज से सीखते आ रहे हैं कि ईमानदारी क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। मैं जब क्लास 6 के बच्चों में कलकत्ता में एक स्कूल में क्लास ले रहा था, उनको मैं ये बता रहा था कि ये गलत है, ये सही है। आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपको पता है कि क्या गलत है, क्या सही है। अब आपको उस स्टेज से जाना है। जब हम जीएम लोगों का जब क्लास लेते हैं तो हमको उनको लाइक बताना पड़ता है। वहाँ पाता है कि बिजनेस एंगल क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, किसको कैसे हम लोग सिस्टम को ले जाना है, क्या ले जाना है। आपको अभी क्या है कि हाँ ये है कि यूपी इज पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ नीट इंक्रीज करने की सबका साथ दीजिए, मिल के चलिए, कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। छोटे छोटे चीज पर ध्यान नहीं देना है। एक छोटे छोटे चीज पर ध्यान देंगे तो बड़ा चीज आपको छूट जाएगा। और जो गलत पैसा होता है वो गलत ही होता है। जो आज तक नहीं देखिएगा कोई कंपनी चाहे कोई भी आदमी गलत पैसा लेकर के बड़ा हो गया, वो खाली क्षणिक का आराम होता है, कुछ दिन के लिए रहता है। लॉन्ग टर्म में देखिएगा कि जो आपका अपना टैलेंट है, आपकी जो अपनी ईमानदारी है, आपका जो वसूल है, वो काफी लॉन्ग टर्म तक काम करता है। हम अब नया दौर में जा रहे हैं जहां पर पूरा इंटरनेट, पूरा साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, बिना मोबाइल का हम 1 मिनट नहीं रह सकते, बिना सीसीटीवी के, बिना जीपीएस का हमारा माइंड एक्टिविटी नहीं हो सकता, बिना टेक्नोलॉजी का, बिना ईआरपी का यूज किए हुए नहीं जा सकते, ऑफिस का यूज नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। मीन्स बिना आईटी का यूज किए हुए हम नहीं रह सकते। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आता है, उस जो बैड एलिमेंट होते हैं वो भी उसी अनुसार से जंप करते हैं। तो मेरा ड्यूटी बनता है कि हम उसके अनुसार से प्रोटेक्ट करें। कुछ चीजें होती हैं कि हमको पता नहीं है। जब कोविड पीरियड आया था तो शत्रु अदृश्य था, हमको घर में छुपना पड़ा। जब शत्रु अदृश्य हो तो आपको छुप जाने में भलाई है। जब कोई पाकिस्तान में बैठ के, चाइना में बैठ करके, रशिया में बैठ करके आपके यहाँ कंप्यूटर को हैक कर सकता है, तो ऐसे केस में अपने आप को बचाव करना बहादुरी है। हम हो सकता है उनसे नहीं लड़ पाए, हमारा टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया अभी तक जो उनके वायरस को पहले से खत्म कर दें, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब अटैक कई बार नहीं होता है, अटैक 1 बार 2 बार करता, देखिए बच गया तो नहीं हो पाया। 1 साल पहले एम्स में, आप न्यूज़ में पढ़े होंगे, एम्स के सारे कंप्यूटर को किसी ने हैक कर दिया था। पूरे 4 घंटे तक सारे पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट, एक्सरे और जो भी उसका है सब कुछ हैक हो गया। वो लोग पेपर पे आ गए। एम्स उसका पर्पस ये नहीं था कि हमको पैसा कमाना है, उसको एम्स की रेपुटेशन को डाउन करना था। कोल इंडिया का जिस तरह से नेम फेम है, जिस तरह से हम टोटल जीडीपी में रहते हैं और चाहे जिस तरह से हम नेशनल लेवल में सेवा कर रहे हैं, सबकी नजर कोल इंडिया पे है। ये आपका जो नॉलेज है, मेरा जो बेटा है उसको मोबाइल ज्यादा पता है हमारे कंपनी में, आपको कंप्यूटर के बारे में, आईटी के बारे में ज्यादा पता है। आप हमारे टुमारोज हैं, आप अपना ब्रेन का यूज कीजिए और आप आईटी सेक्टर को देखिए कि हमारा क्या वो आईटी प्लेटफॉर्म हमारा स्ट्रॉन्ग है, क्या हमारा साइबर सिक्योरिटी सफिशिएंट है। लास्ट ईयर सीबीसी ने एक नया चैप्टर जोड़ दिया था ई बिजनेस करके। हमको बोला गया कि आप दिखाइए उसका कि सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग है कि नहीं, साइबर ऑडिट सिस्टम का देख लेना है। कोई ऐसा तो प्लेटफॉर्म हमारा ई ऑफिस इतना कमजोर तो नहीं कि जो मर्जी हुआ करके चला जाए करके। 2 अप्रैल को मैडम हमको सीबीसी सुबह 8 बजे फोन किए कि एक लड़का टॉप 10 में है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और टोटल 200 लड़कों का 250 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। तो टॉप 10 में नहीं हुआ, 200 लड़कों का सिलेक्शन हुआ,
योर कोल इंडिया इज लाइक दैट। सुबह 8 बजे CBC का डायरेक्टर फोन में बता रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने, तो अब मुझको बोलना पड़ा सर कोल इंडिया ऐसा है नहीं, लेकिन चूंकि आपको बोलना है तो हमको 3 घंटा टाइम दीजिए, मैं आपको 11 बजे बताता हूँ। तो लेकर तुमने उसको रिसर्च किया, देखा वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया था। आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं जमा कीजिएगा, टॉपर रहेगा तो भी आपको रिजेक्ट कर देगा, वो रूल इज रूल। फिर और भी चेक किए तो उसने जो डॉक्यूमेंट जमा किया था उसमें एक ब्लैंक पेपर था। बाद में फिर CBC का फोन आया 1:30 बजे, उसके साथ एक ब्लैंक पेपर देखो, द पर्सन क्लेमिंग दैट ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज माय मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। फिर और मैं रिसर्च किया, और मुझको संदेह क्या हुआ कि जब हमने पूछा है उससे तो हमारा जो डिपार्टमेंटल आदमी है वो कागज को हो सकता है कि गायब कर दिया, लेकिन हमारे पास कोई टूल नहीं है कि हम चेक कर सके कब ट्रैक किया गया, कब उसको हटाया गया। या हो सकता है कोई और आदमी हटा दे, या आदमी से मिलकर हटा दे। हैदराबाद का फॉरेंसिक वाले को हमने हेल्प किया, थोड़ा गांधी नगर वाले को हेल्प करने की कोशिश किया। फिर उसको बुलाया कि नहीं मेरे पास ऑडियो को खोल के दिखाओ, और मैं रिसर्च किया, देखा कि पहले से आदमी रिक्वेस्ट कर रहा कि मैं जमा नहीं कर पाया, उसके सफिशिएंट प्रूफ मिल गए। मैंने वो पहले से 3-4 बार मेल किया है, चिट्ठी भी लिखा है, कागज नहीं जमा कर पाया, और ले लीजिए और ले लीजिए। मतलब हो गया कि हम इतने कमजोर थे, कमजोर है अभी भी, कि उतना IT में घुसकर हम चेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा IT प्लेटफॉर्म ठीक है कि नहीं, और सेफ्टी ऑडिट होता है कि नहीं, उसका AMC है कि नहीं। दैट इतना जितना बिजनेस वाले कर सकते उतना कर लेंगे। यही कारण है कि मैं बिजनेस वालों को पहले ट्रेनिंग कराया। यदि चोर को पकड़ना है तो चोर से तेज दौड़ना पड़ेगा, कम से कम उससे ज्यादा नॉलेज हमको गेन रखना पड़ेगा, तभी हम पता कर सकते हैं कि कहाँ तुम गड़बड़ कर रहे हो। बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आप स्पेशल एजेंसी का हेल्प ले सकते हैं, फॉरेंसिक वाले को सब लेकर हम हेल्प ले सकते हैं। तो हमने कलकत्ता के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में फिर गांधीनगर में भेज करके फॉरेंसिक के लिए हमने स्पेशल ट्रेनिंग किया। तो इससे सावधान रहना है, ये शत्रु अदृश्य है। एक उनका है ना बच्चन साहब का, ये शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। शत्रु यह अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। कर्ण भूल तू जरा भी ना फिसल, शत्रु यह दृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। कर्ण भूल तू जरा भी ना फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल। ये बच्चन साहब का कविता है, ये काफी सूट करता है इस पे। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को। ये साइबर क्राइम जो है वो $5 ट्रिलियन का इसकी इकोनॉमी है, इतना हाई लेवल इसका हासिल करता है। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को। जो ये संकल्प लेगा कि मुझे अंधेरा दूर करना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा है कि आप सब लोग हाथ उठाएं कि मुझे इसको भ्रष्टाचार को दूर करना है। वो ये बढ़िया है, हाथ उठा के आप ये फिर बोलिए ताली बजाओ। वो हम वैसे आदमी है जो ये प्रण करे, हम लोग शपथ लेते हैं कि ना भ्रष्टाचार करेंगे और न करने देंगे। करने देने वाले हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को तो ठीक रख सकता हूँ, आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। मैं आपको नहीं सुधार पाऊंगा, लेकिन आप अपने आप को सुधार सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हर मैनेजमेंट ट्रेनिंग हमारा जो है वो ये प्रण करे कि कम से कम मैं ऐसा कुछ अनाचार नहीं करूंगा। गलतियां तो होगी, गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन मैं जानबूझ के गलती नहीं करूंगा। यदि गलती हो भी जाती है तो उसको मैं हाईलाइट करूंगा, उसको रिकॉर्ड कर दूंगा कि ये गलती हुआ बिकॉज ऑफ दिस, और लेकिन उनको करना पड़ा। मतलब मैं सीधे शब्द में ये बोलूं कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। ये कितने लोग प्रण लेंगे आज? This is my young India. This is my young India. This is my grand
अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुनून भी सब अंधकार कर देता है। थैंक यू। धन्यवाद सर। Thank you for sharing valuable thought, and I'm sure on behalf of these MPs will follow the path you have shown here. और जो दिया आज इन लोगों के दिल में जगा के जा रहे हैं सर, उम्मीद है किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, बुझने नहीं देंगे, और ये अपने सब्सिडी को ना पूरे भारतवर्ष को रौनक करेंगे। This is the way you're just starting your career. You've just been some few months old in the industry, and something like this is going to be very, very important input to shaping your career in the industry. So, ऐसा है कि बहुत कम बार ऐसे मौका मिलता है जब ऐसे सीनियर ऑफिसर्स इकट्ठा आप लोगों को टाइम दे पाते हैं. That is why I'm saying you're very lucky. Sir, this batch is otherwise also lucky. They are going to be part of our 30th day, foundation day function, and some of them are also going to be volunteering and helping us to do the event. And they are also lucky because they participated in the walkathon on the 4th with us. They all got a t-shirt from the IACL, and we all took a lot of photographs from them. See, it's important. Induction training program में बहुत कुछ आपको सिखाया जाता है. A lot of inputs I'm sure you're getting. But ये जो input है, ये it will actually shape your career. It will shape your personality. जो हम लोग बहुत कुछ एक नजरिया से जो देखते हैं, the entire perspective changes if you look at it from integrity angle, from ethics angle, from the right and wrong angle, from the values perspective. And ये बार-बार हम लोग सुनते हैं कोल इंडस्ट्री बदनाम है, कोल सेक्टर बदनाम है, कोल इंडिया बदनाम है. So many times the perception becomes a reality. So each of you are brand ambassadors for this company. When you are joining, you may be in one of the subsidiary companies, you may be in one of the areas, you may be in one of the functions. ऐसे करते 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 आप अपने आप को एकदम एक छोटा सा रोल अगर समझ सकते हैं वो एक है. Otherwise, if you think you are Coal India, look at the power that you get. So our request always is from IACF, you think you are Coal India. So if you think you are Coal India, आपका पूरा the perspective changes. You feel I have to take responsible decisions. I have to make sure that the honesty, integrity, the right things have to happen. Even if something wrong is happened, as sir ने बोला था, I have to report it to the right authorities. I am the brand ambassador for this company. ये जो है, if each of the Coal India employees think that they are the brand ambassadors for this company, जो कोयला का जो है ऐसे उठा के जाते थे, वैसे होता था, ये सब आप बदल सकते हैं, not just among your colleagues, but the entire social sector that you are part of. हम हमेशा बोलते हैं ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट में वेट करते हैं, लॉन्च में वेट करते हैं. We all strike some conversation with strangers. So obviously the first thing anybody will ask you, अच्छा क्या कर रहे हो, कहाँ पे है, क्या पढ़ाई किया, माइनिंग किया, कोल इंडिया ज्वाइन किया, तो बताइए क्या बात है, क्या नया हो रहा है. So this updation of knowledge is very, very critical to you. Everything, you should not say हम ये particular काम कर रहे हैं. You are not a cog in the wheel. Always position yourself that I am Coal India. So you keep updating your knowledge with respect to what is going to be happening in the future, what are all the plans of the company, what are the diversification issues, energy sector में जाने के लिए क्या-क्या और आगे का कदम है. So ऐसे आगे का आप सोचिए, and always remember that you should be talking future, you should be talking positive about your organization in wherever field that you are representing, right? So I'm sure this input very interesting, very सर का तो एकदम एक फ्लो में निकलता है, in a very storytelling and anecdotal mode में जो मिलता है. This also is an inspiration for you. How can I pick up this art of
articulation, art of storytelling, art of engaging a diverse audience and a little fitri. I keep saying this Gen Z is in attention spans बहुत limited है. But I kept looking at all your facial expressions. You were all attention. Because 2-3 मिनट से ज़्यादा आप लोग का attention capture करना अपने आप में एक बहुत बड़ा challenge है for people like us. उससे हटके आपके हिसाब से, आपके समझ के अनुसार से बात करना और कनेक्ट करना एक बहुत बड़ा है. ये भी आप जरूर सीखिए. Because these are little things. इंजीनियर बन गए, नौकरी मिल गया, Now, unless you want it, unless you do something very wrong, you are not going to be thrown out, right? So, जो है अभी आपका career में, try to do positive things, try to do learning, try to do 24/7 learning, because जहाँ देखो learning ही learning है. So learning is not just what happens in the classroom. Learning is what happens in life throughout your life, right? Thank you very much. Thank you so very much to Tripathi sir. He could have decided, he came in the morning and was very tired, early morning flight from Calcutta, but still he was so interested in talking to you, interacting with you. Just your previous batch also got advantage of, because we celebrated the Vigilance Week, Vigilance program. So that time also he was very keen to interact with the MTs. And I'm also thankful to both the CVOs who have a plethora of experience in the coal companies that they all represent. I'm sure we will get more opportunities to request them to also, talk to you, interact with you, so that you understand the company in a larger perspective. That is very, very important. Thank you, sir, very much for your time.